سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت کے بیشتر یوٹیلٹی سٹورز آٹا اور چینی سے خالی ہیں۔ سستے آٹے کے حصول کے لیے شہری لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ شادمان یوٹیلٹی سٹور کے باہر بزرگ، خواتین، مرد حضرات حکمرانوں کو کوسنے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، ایک طرف تو ضروری اشیاء کی قیمتوں میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ضروری اشیاء کی جو مارکیٹس ہیں وہ بھی ناپید جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ لاہور کے بیشتر یوٹیلٹی سٹور پر نہ آٹا مل رہا ہے تو نہ چینی مل رہی ہے، جبکہ جتنی چینی آتی ہے اس کے مطابق 3 کلو جو چینی ہے وہ ایک آئی ڈی کارڈ پر دی جا رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں شادمان کے یوٹیلٹی سٹور پہ۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو شہری آٹے اور چینی کے لیے جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آٹے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک آٹا نہیں آئے گا اور جب تک چینی نہیں آئے گی لے کے گھر نہیں جائیں گے۔ یہ صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہوئی ہے۔ ایک شہری موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کب سے نہیں مل رہا، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لینے گئے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 6 دن سے چینی نہیں ہے ادھر، اور آٹا لائن میں لگتا ہے، جب باری آتی ہے آٹا ختم ہو جاتا ہے، واپس چلے جاتے ہیں۔ باہر سے لینا پڑتا ہے، 2900 روپے کا توڑا مل رہا ہے باہر۔ تو غریب آدمی کیا کرے؟ آٹا لے، بچوں کو کیا کرے، پڑھائے، فیسیں دے، بل دے۔ اس مہینے کا بل 16,000 روپے آیا ہمیں۔ جی بالکل، بزرگ شہری کی آپ نے بات سنی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مارکیٹ سے آٹا جو ہے وہ 1900 روپے کا جو تھیلا وہ مل رہا ہے، جبکہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں تقریباً یوٹیلٹی سٹور پر جو ہے وہ 650 روپے کا آٹے کا تھیلا تو ضرور مل رہا ہے، لیکن ناپید ہے۔ شہریوں کو 5-5 6-6 گھنٹے جو ہے وہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اس کے بعد یہ آٹا یا چینی جو ہے وہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین۔ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے۔ سبزیاں نرخ نامہ کے برعکس مہنگے داموں بیچی جا رہی ہیں۔ پیاز 80، ٹماٹر 140 روپے فی کلو فروخت، جبکہ ریٹ لسٹ میں 4 پھل بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ پولٹری مصنوعات بدستور غریب کی پہنچ سے دور۔ برائلر گوشت سستا ہو کر بھی مہنگا۔ مرغی کا گوشت 14 روپے کمی سے 579 روپے فی کلو ہو گیا۔ تفصیلات کیا ہیں عبدالقادر سے جانیں گے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ آج سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 2 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ 4 پھل مہنگے کیے گئے ہیں۔ جو روزمرہ استعمال کی سبزیاں جس میں پیاز، ٹماٹر، لہسن، ادرک شامل ہے، تو آج پیاز جو ہے 3 روپے مہنگا کر کے 48 روپے مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک پیاز کی فروخت کی جا رہی ہے۔ ٹماٹر 110 روپے سرکاری ریٹ میں، مارکیٹ میں 140 سے 150 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ، پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ، برائلر سستا ہوا ہے لیکن اب بھی کیا قوت خرید میں ہے؟ سر جی کچھ بھی سستا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ برائلر آج بھی 580 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے۔ سبزیاں آپ کے سامنے ہے، یقین کریں جو لسٹ پہ ریٹ ہے نا، اگر 200 روپے ریٹ ہے نا وہ بھی نہیں دیتے، وہ بھی 300 روپے دیتے ہیں۔ سبزیاں وہ مہنگی ہوئی ہوئی ہیں۔ اور رہی بات پھلوں کی، پھل تو اس نے ہی کھانا جس کے پاس پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ غریب آدمی ہے، کیا کھائے گا؟ گھر کا راشن لے، یہ سبزی وغیرہ لے، دیہڑی پوری ہو جاتی ہے، پھل اس نے کہاں سے کھانا سر جی؟ بالکل، آپ نے جو ہے صارف کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ جو برائلر ہے وہ سستا ہو کر بھی غریب شہری کے لیے سستا نہیں ہے، کیونکہ 580 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ سبزیاں اور پھل جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ سرکاری ریلسٹوں سے زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ سبزیاں اور راشن ہی پورا کرنا مشکل ہے، پھل اور برائلر کہاں سے خریدا جائے؟ بہت شکریہ عبدالقادر۔ غریب عوام پر مہنگائی کے وار جاری ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے صارفان بل بلاؤ۔ شہریوں کا حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کاروبار ہے اور حکومت آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز فہد امین سے۔ جی فہد۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے عوام پر مسلسل جو ہے وہ بجلی بم گرایا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ نیپرا کی جانب سے بجلی کا بنیادی ٹیرف بڑھا دیا گیا ہے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 روپے سے 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، اور عام عوام پر یہ ایک بجلی بم گرایا گیا ہے جس کو برداشت کرنا جو ہے وہ عام جو صارف ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ پہلے سے روٹی سے مرے ہوئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس، سمجھا نا۔ کوئی آدمی کو جتنا کماتا ہے اس میں نہ گھر کا پورا ہوتا ہے، نہ بجلی کا، نہ گھر کا کرائے پہ گھر ہے، کس طرح بندہ رہے گا بھائی؟ اتنا بل بڑھا دیا ہے۔ ایسے کرتے کرتے ہم پہ ظلم ڈھاتے رہیں گے، قرضے لیتے رہیں گے اور پاکستان کو ڈباتے رہیں گے، اور عوام مر جائے گی تو کائے کا پاکستان رہے گا پھر یار؟ جب عوام پاکستانی ہے تو پاکستان ہے، جب پاکستانی غریب مر گیا تو پھر پاکستان کہاں کا رہے گا بھائی؟
जी बिल्कुल, आपने जो है वो सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है और ऊपर से जो है वो हर माह हुकूमत की जानिब से कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो बिजली महंगी कर दी जाती है और कभी जो है वो बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया जाता है। तो आम आदमी के बस की बात नहीं कि वो इतना बिल जो है वो अदा कर सके। जो ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार तबका और जो छोटे कारोबारी अफराद हैं, छोटे कारोबारी शख्सियात हैं, उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा इजाफा है और उनके बस की बात नहीं कि वो अपने बच्चों को अब 2 वक्त की रोटी भी खिला सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गट्टों के ढक्कन चोरी होने और टूटने से बचाने का मंसूबा है। वासा का शहर में इब्तदाई तौर पर 10,000 प्लास्टिक के रिसाइकल ढक्कन लगाने का फैसला। वासा इंतजामिया ने 3,08,30,000 रुपए का तखमीना लगा लिया। तफसीलात बताइएगा ज़ैनुल आबदीन। वासा ने मैन होल कवर्स को चोरी होने और टूटने से बचाने का प्लान बना लिया है। वासा ने लाहौर में प्लास्टिक रिसाइकल ढक्कन लगाने का हतमी फैसला कर लिया है और इब्तदाई तौर पर शहर लाहौर में 10,000 जो मैन होल कवर्स हैं उनकी तब्दीली का काम किया जाएगा। वासा ने प्लास्टिक मैन होल कवर रिसाइकल खरीदने के लिए 3,08,30,000 रुपए का तखमीना लगाया है और वासा का शोबा P&S आइंदा माह अगस्त में मैन होल कवर्स की खरीदारी करेगा। माजी में देखा गया कि वासा इंतजामिया प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन खरीदने से मुतल्लिक तजब्जुब का शिकार थी। इस हवाले से 1.5 साल कबल फैसला भी किया गया, लेकिन अफरात ज़र के सबब वासा प्लास्टिक रिकम्पोजिट के नए ढक्कन ना खरीद सका। अब RCC के ढक्कनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब वासा इंतजामिया की जानिब से दोबारा ये फैसला किया गया है कि ये प्लास्टिक रिकम्पोजिट के जो ढक्कन हैं इनका इस्तेमाल किया जाए। 10,000 ढक्कन लगाने के बाद मजीद ढक्कन खरीदने से मुतल्लिक अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। उसके लिए पंजाब हुकूमत को जो फंड्स है वो देने के लिए रजू किया जाएगा। वासा इंतजामिया का कहना है कि अब मुस्तकबिल में ये फैसला किया गया है कि जो तमाम मैन होल कवर हैं वहां पर प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन ही लगाए जाएंगे ताकि इनको चोरी होने से भी और टूटने से बचाया जा सके। ठीक है ज़ैन, ये बताइएगा, ये कहा जाता है कि काम चल रहा है, ढक्कन जो है वो चोरी हो जाते हैं, बावजूद इसके जब बारिशें होती हैं तो इंतजामात सारे धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल, माजी में भी ये देखा गया है कि मुख्तलिफ मुकामात पर ये जो ढक्कन चोरी होने के वाक़यात हैं इसकी वजह से बेशतर हादसा भी रूनुमा होते रहते हैं। अब ये और दावा वासा की इंतजामिया की जानिब से किया गया है कि प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कनों का इस्तेमाल किया जाएगा। फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं, लेकिन जो हुकूमत है उनकी जानिब से मुकम्मल फंड्स ना देने की वजह से ये इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये वासा इंतजामिया ज़ाती वसाइल से 3 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत के ये ढक्कनों को खरीद रहा है ताकि शहर में जो हादसात हैं इन मैन होल कवर्स की वजह से इनको रोका जा सके। अब इस वक्त प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन इस्तेमाल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल में देखा जाए तो कई बच्चे इन मैन होल कवर्स में गिरने की वजह से अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, क्योंकि बेशतर मुकामात पर जो ये मैन होल कवर्स हैं ये चोरी हो जाते हैं और इस तरह की जो वीडियोस हैं वो भी आ चुकी हैं। और 1 साल के दौरान वासा इंतजामिया की जानिब से 8 जो मुकदमात हैं वो भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए गए हैं। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ये जो बने हुए प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन बने हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये ना चोरी हो सकेंगे और ना ही इनको फरोख्त किया जा सकेगा। प्लान यही बनाया गया है कि लाहौर में जो 6,000 किलोमीटर का सिवरेज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर 10 लाख से ज़ायद जो ये मैन होल कवर हैं उनकी तब्दीली की जाएगी और पंजाब हुकूमत की जानिब से फंडिंग मिलने के साथ नए मैन होल कवर लगाने के मंसूबे को मशरूत किया गया है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड्स ख़त्म करके एक बोर्ड बनाने का काम तेज़ कर दिया गया। हुकूमत ने पंजाब बोर्ड्स कमेटी चेयरमैन के इख्तियारात सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को दे दिए हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तमाम तालीमी बोर्ड्स का सरबराह होगा। तालीमी बोर्ड्स मुलाजमीन की जानिब से फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, ये है फैसला जो है कर लिया गया है और अब इस पर अमल दरामद होगा कि पंजाब के जो 9 तालीमी बोर्ड हैं इनको एक बोर्ड के तहत कर दिया जाएगा और इसका इख्तियार जो है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को दिया जाएगा। तो हफ्ते के रोज जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें इसकी हतमी मंजूरी दी गई है और अब तमाम बोर्डों की जो खुद मुख्तारी है उसको ज़राए का कहना है ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके साथ जो सरबराह हैं पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन के वो सेक्रेटरी होंगे और तमाम जो बोर्ड के सरबराह हैं उनको सब मेंबर के तौर पे ही रखा जाएगा और
ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب اس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے اور جو اس حوالے سے جیسے یہ فیصلہ ہوا ہے تو ملازمین کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خود مختاری ختم کی جا رہی ہے جو قابل قبول نہیں ہے. سیکٹری ہائر ایجوکیشن کو تمام اختیارات دیے جا رہے ہیں اور یہ ون مین شو ہوگا جو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. دوسری طرف خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے مزید 69 افسران اور اہلکاروں کی پروموشن ہو چکی ہے. ترقی پانے والوں میں 39 ASIs اور 30 ہیڈ کانسٹیبل شامل ہے. آج پنجاب کی ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو مبارکباد دی گئی ہے. نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں مجاہد لطیف سے. جی مجاہد. پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا جو اقدام ہے پروموشن کے سلسلے میں اس میں ایک اور پیش رفت ہوئی ہے کہ 69 پولیس افسران اور اہلکاروں کو ترقی مل گئی ہے. میرٹ اور سینیارٹی کے مطابق 69 اہلکاروں کو سب انسپیکٹر ASI رینک پر ترقی دے دی گئی ہے. ترقی پانے والوں میں 39 ASI 30 ہیڈ کانسٹیبل شامل ہیں. پروموشن کے حالیہ جاری مرحلے میں قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے 7000 اہلکاروں کو ترقی دی جا چکی ہے. شیخوپورہ ریجن کے افسران اور اہلکار ترقی پانے والوں میں شامل ہیں. آئندہ چند روز میں دیگر اضلاع میں بھی میرٹ کے مطابق ترقی کے اہل افسران اور اہلکاروں کو ان کا حق دیا جائے گا، ایسا کہنا ہے آئی جی پنجاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترقی پانے والے افسران اور اہلکاروں کو مبارکباد ہے. مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوام کی جان و مال کے تحفظ اور جرائم کے کلا کما کے لیے جذبہ جہاد خدمت کے ساتھ فرائض کی ادائیگی بھی کی جائے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. شوہر کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی. اس دوران اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. بیوی خلا لینے کے لیے سول کورٹ پہنچ گئی. جبکہ 7 سال سے کوئی شخص لاپتہ ہو یا سزا ہو چکی ہو تو شرعی طور پر بیوی خلا لے سکتی ہے. وکیل درخواست گزار عدالت نے قانونی نقطے پر وکلا کو 25 اگست کو طلب کر لیا. تفصیلات ابوبکر طارق سے جانیں گے. ابوبکر بتائیے. سول کورٹ میں یہ معاملہ ہے. شوہر کو جو ہے وہ عمر قید ہونے پر اس کی بیوی خلا لینے کے لیے عدالت پہنچی ہے، جس میں عدالت نے قانونی نقطے پر وکلا کو جو ہے وہ 25 اگست کو طلب کیا ہے. کانا کی رہائش ہے یہ سدرا بی بی، جنہوں نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شوہر کو عدالت کی جانب سے مختلف کیسز میں عمر قید ہو گئی ہے اور دیگر کیسز بھی چل رہے ہیں، جبکہ اس کے بغیر اسی دوران اپنی اکیلی زندگی جو ہے وہ گزارنا مشکل ہے اور ممکن نہیں ہے. جبکہ اس کے وکیل نے عدالت کو یہ کہا ہے کہ 7 سال سے کوئی شخص لاپتہ ہو یا اس کو سزا ہو چکی ہو تو شرعی طور پر اس کا جو اس کی بیوی ہے وہ اس سے خلا لے سکتی ہے. تاہم عدالت نے وکلا کو اس نقطے پر بحث کے لیے 25 اگست کو طلب کر لیا ہے. جی ٹھیک ہے ابوبکر، بہت شکریہ. عسکری ٹاور پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت 4 مقدمات کی سماعت ہوئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے جوڈیشل ریمانڈ میں 7 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے. عدالت کی یاسمین راشد کے خلاف درج مقدمات کا چلان پیش کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج ابرکل خان نے سماعت کی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نعمان نور سے. جی نعمان. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں مسلم لیگ نون کے آفس جلانے میں 4 مقدمات پر سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف درج مقدمات کا چلان عدالت نے پیش کرنے کا حکم دے دیا. اس حوالے سے عدالت میں تفتیشی افسر پیش ہوئے اور عدالت کو آگاہ کیا کہ ان مقدمات کے جو چلان ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں، عدالت مزید مہلت دے. جبکہ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جوڈیشل ریمانڈ میں 7 اگست تک توسیع کا حکم جاری کر دیا، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابرکل خان نے کیس پر سماعت کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعمان. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سائیکلنگ کے فروغ کے لیے LD کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. شہر لاہور کی مرکزی شاہراہ پر سائیکلنگ لین بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مرکزی شاہراہ کی بائیں لین کو سائیکل سواروں کے لیے مخصوص کیا جائے گا، جبکہ LD انتظامیہ ذاتی وسائل سے لین مارکنگ کروائے گی. سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سائیکل ایونٹ بھی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے. جی زین. کے فروغ کے لیے LD انتظامیہ کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہر لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر سائیکلنگ لین بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. مرکزی شاہراہ کی بائیں لین کو سائیکل چلانے والوں کے لیے مخصوص LD ذاتی وسائل سے سائیکل لین کے لیے لین مارکنگ کروائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سائیکل ایونٹ بھی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کمشنر لاہور اور DG LD محمد علی رندھاوا نے سائیکلنگ ایونٹ کروانے کے لیے تیاری شروع کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں. دوسری جانب LDA کے شعبہ انجینئرنگ کی جانب سے جو ورکنگ کی جا رہی ہے اس کے مطابق
फेज 1 में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर साइकिल लेन बनाई जाएगी। लिबर्टी गोल चक्कर से सदीक ट्रेड सेंटर तक इंतहाई बाई लेन को साइकिल लेन के लिए मुख्तस किया जाएगा। दूसरे फेज में जेल रोड, मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन, मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी पर भी ये साइकिल लेन बनाई जाएगी ताकि शहरियों में साइकिलिंग के फरोग दिया जा सके। जी, बहुत अच्छा इकदाम है। ज़ैन, कहिएगा क्या ये अमल दरामद हो पाएगा? क्योंकि अगर देखा जाता है कि मोटरसाइकिल की जो लेन है, मोटरसाइकिल वाले उस पर नहीं चलते, गाड़ियों वाले अपनी लेन में नहीं चलते, तो इसको किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा? बुनियादी तौर पर ये हाई कोर्ट की जानिब से LTA को अहकाम जारी किए गए हैं कि साइकिलिंग के फरोग के लिए ये इकदाम किए जाएं। माजी में भी देखा गया है कि कैनाल रोड पर जो इंतहाई बाई लेन थी उसको साइकिल और बस के लिए मुख्तस कर दिया गया, लेकिन अब इसमें शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा कि जिस लेन को जिस व्हीकल के लिए मुख्तस किया गया है उसी लेन को ही इस्तेमाल किया जाए। ताहम इसमें LTA की जानिब से जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम है उनकी भी मदद ली जाएगी ताकि जो लेन साइकिलिंग के लिए और बस के लिए मुख्तस है उसको किसी और गाड़ी के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। बताएं कि शहर लाहौर में धूप छाँव का सिलसिला जारी है। लाहौर के बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी भी जारी है। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, जेल रोड पर बूंदाबांदी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा था कि सुबह सवेरे से ही शहर लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी थी। लेकिन अगर बात की जाए ताहाल जो मौसम है, आसमान पर बादलों का राज है और यही देखा जा रहा है कि ठंडी ठंडी हवा का जो सिलसिला है वो भी शुरू हुआ है। शहर के जो कुछ इलाके हैं वहां पर ताहाल भी हल्की बूंदाबांदी जारी है और मौसम जो है वो खुशगवार हो गए। मगरिबी हवाएं जो है वो मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने के बायस जो बारिशों का सिलसिला है वो महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 30 जुलाई तक इसी तरीके से ही जारी रहेगा। ताहाल भी जो है वो ठंडी ठंडी हवा चलने के बायस हब्स और गर्मी का जो जोर है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक हवा जो है वो 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम जो है वो सुहाना हुआ है। लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी मौसम खुशगवार होने से खिल उठे हैं, क्योंकि सुबह सवेरे से यही देखा जा रहा था कि शहर लाहौर में शदीद गर्मी पड़ रही थी और आप थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर का जो मौसम है वो एक बार फिर से खुशगवार होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज से लेकर 30 जुलाई तक जो बारिशों का सिलसिला है वो वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि 27 जुलाई से जो है वो बारिशों का एक नया स्पेल शुरू होगा, जिसमें बारिशें यही देखा जाएगा कि जमकर बरसेंगी, लेकिन उनकी शिद्दत जो होगी वो पिछले स्पेल की निस्बत कम रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर जो आज फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में 4थे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ताहाल जो है वो 99 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से ही मूसलाधार बारिशें होती रहीं तो यही देखा जाएगा कि जब पानी की सतह दरियाओं में वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो PDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दरियाए रावी, चनाब और जहलम में अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो मुतवक्के किया जा रहा है और लाहौरियों को जो है और शहरियों को जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि नशेबी इलाकों में जो है वो पानी ज़ेरे आब भी आ सकता है। तो दरियाओं के करीब जो मकामात हैं वो उनको जल्द जो है वो किसी लोग शहरियों को जल्द से जल्द किसी सेफ मकाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी मदद की सूरत में PDMA की जो हेल्पलाइन है 1129 पर कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन ताहाल शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार है और लाहौरी जो है इस मौसम को खूब एंजॉय करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। ये भी कहिएगा कि दरियाओं में पानी भर चुका है, सैलाब आने का भी खदशा है और CM की जानिब से भी कहा गया था कि अगर दोबारा बारिशें आती हैं तो सैलाब आ सकता है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही बताया जा रहा है कि दरियाए रावी, चनाब और जहलम में जो है वो दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है अगर इसी तरीके से ही मूसलाधार बारिश हुई। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो इंडिया में भी जो है इसी तरीके से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और इंडिया के डैम्स में जो है वो 90% जो पानी है वो फिल हो चुका है। तो यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर इंडिया की जानिब से भी पानी छोड़ा गया तो यहाँ पर जो है वो सैलाबी रेला जो है वो आने मतवक्की है। तो यही
यही देखा जा रहा है। पीडीएमए की जानिब से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और साथ में जो आबादियां रहती हैं दरियाओं के करीब, उनको यही कहा गया है कि जल्द से जल्द किसी सेफ मकाम पर मुंतकिल हो कि अगर सैलाब आता भी है तो डूबने का खदशा ना हो। ठीक है, सामिया सईद हमें मौसम का हवाल बता रही थी। बहुत शुक्रिया सामिया आपका। निकासी आब को मौसर बनाने का प्लान, शहर में ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे करने का फैसला। निकासी आब के लिए सड़कों की अदम हमवारी को ख़त्म किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास ग्रीन बेल्ट सड़क से नीचे करने का जायजा लिया गया। अमल दरामद प्लान के लिए टीपा ने लाहौर का सर्वे मुकम्मल कर लिया। अदम हमवार सड़कें, रेज्ड ग्रीन बेल्ट्स और बंद नालों को शनाख्त कर लिया गया। तफसीलात के लिए इमरान अकबर हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा इमरान से रब्ता करने की कोशिश जारी है। आपको बताएं कि निकासी आब को मौसर बनाने का प्लान जारी है। शहर में ग्रीन बेल्ट्स को सड़क से नीचे करने का फैसला कर लिया गया है। निकासी आब के लिए सड़कों की अदम हमवारी को ख़त्म किया जाएगा। इमरान ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिए इमरान। कर दी है कि प्लान के लिए वासा की निशानदेही पर टीपा ने पूरे लाहौर का सर्वे मुकम्मल किया है, जिसमें अदम हवार सड़कों और इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स और गली ग्लिटर्स की अदम मौजूदगी और बंद नालियों को शनाख्त कर लिया गया है। 100 पॉइंट्स भी सामने आ चुके हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि जब भी मानसून आता है तो निकासी आपका सबसे बड़ा मसला इन जो अदम हवार सड़कों की वजह से पानी खड़ा रहने की वजह से होता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा शहरियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से जो ग्रीन बेल्ट सड़क से नीचे करने का फैसला किया गया। अब जो भी कोई नई सड़क बनेगी उसमें ग्रीन बेल्ट्स को खास तौर पर जो है सबसे पहले देखा जाएगा कि ग्रीन बेल्ट जो है वो सड़क से ऊपर रहेंगे, नीचे जैसे ही देखा इसमें नई सड़क जो होगी वो उसकी तमीर शुरू होगी तो उसमें ग्रीन बेल्ट को नीचे कर दिया जाएगा, ताकि जो पानी का निकास है वो बेहतरीन तरीके से किया जाए। इस वजह से पहले महल्ले में मेन बुलेवार्ड, माल रोड और फिरोजपुर रोड पर काम का आगाज किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने बाकायदा तौर पर डेडलाइन भी दे दी है। सड़कों पर पॉकेट्स की सूरत में जमा पानी को ग्रीन बेल्ट में डाला जाएगा और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत में अगर देखा जाए तो पहले मरहले में तमाम महकमे सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पर काम का आगाज करेंगे, वासा मैकेनिज्म बनाएंगे, जबकि ग्रीन बेल्ट में पानी ज्यादा वक्त नहीं ठहरेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने बाकायदा तौर पर तमाम महकमों को इसका अल्टीमेटम भी दे दिया है और रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत भी कर दी है। जैसे ही मानसून खत्म होगा माह अगस्त या माह सितंबर में इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा, ताकि तमाम महकमे जो है अगले साल के लिए इस तमाम ये जो प्रोजेक्ट है इसको मुकम्मल कर लें और शहरियों को जो है ये बारिश के पानी की वजह से शदीद परेशानी का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक हर्डल्स भी खत्म हो जाएंगी। अगर ग्रीन बेल्ट नीचे होती हैं तो पानी का जो निकास है वो ठीक हो जाएगा। इजलास में बड़ा फैसला गया है, जबकि इजलास में CMO NCR सैयद अली अब्बास बुखारी, DG PHA ताहिर भट्टू, एडिशनल DG LDA कैप्टन रिटायर्ड शामिर, चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, MD वासा गुफरान अहमद, MPO जो निदा नैयर जफर, जबकि दीगर अफसरान ने भी वहाँ पे शिरकत की है। कमिश्नर लाहौर ने सर्वे मुकम्मल करने पर टीपा को शाबाश भी दी है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। अहम खबर यह है कि दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर 67,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। शादरा के मुकाम पर 20,600 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। जसड़ के मुकाम पर 48,000 क्यूसिक पानी का रेला चला है। दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने का भी खदशा है। ज़िला इंतज़ामिया के एहलकार दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 63,000 क्यूसिक है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, रावी शादरा के मुकाम पर पानी बदस्तूर मौजूद है और इसका बहाव भी काफ़ी तेज़ देखा जा रहा है। इस वक्त बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 20,000 क्यूसिक फुट के करीब पानी शादरा के मुकाम से गुजर रहा है, जिसमें बतदरीज इजाफा होने का इम्कान इस तरह मौजूद है कि जसड़ के मुकाम पर तकरीबन 48,000 क्यूसिक फुट पानी का रेला मौजूद था, जो कि अब आगे की जानिब आ रहा है। गो कि ये तमाम पानी तो शादरा तक नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन किसी हद तक रावी के पानी में इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ चूँकि 27 जुलाई तक शदीद तूफ़ानी बारिशें होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे दरिया रावी में पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो सकती है। और तीसरी अहम बात यह है कि भारत में जो डैम्स हैं वो तकरीबन भरने के करीब हैं और जिससे वो भर जाएंगे
तो वहाँ से पानी भी पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जाएगा, जिससे रावी में एक मरतबा फिर तुग़यानी आने का ख़दशा मौजूद है। ताहम ताहाल इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसमें रावी शादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है और बिल्कुल महफूज तमाम मकामात देखे जा रहे हैं। शादरा और गिरदोनवा की जो आबादियाँ हैं वो ताहाल महफूज हैं। ताहम ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर डैम्स भरने के बाद भारत की जानब से पानी छोड़ा जाता है तो दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, जो कि शादरा के साथ साथ दीगर आबादियों को भी किसी हद तक मुतासर कर सकता है। इस वक्त भी लाहौर पर बादल मौजूद हैं, जो कि 27 जुलाई तक बरसने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है और मुकामी बारिशों से भी दरियाए रावी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। ताहाल इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें दरियाए रावी तकरीबन निचले दर्जे के सैलाब के पानी के साथ बह रहा है और यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फैलाव इतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा है जिससे किसी बहुत ज़्यादा ख़तरे का खदशा ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस और महकमा हेल्थ के दरमियान मुआहिदा पुलिस वेलफेयर हस्पताल के लग गुज्जर सिंह को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत कर दिया गया। आईजी पंजाब और वजीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने पुलिस वेलफेयर हस्पताल का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। मुजाहिलती बताइएगा इस खबर के हवाले से। बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस और महकमा हेल्थ के दरमियान एक मुआहिदा किया है। पुलिस वेलफेयर अस्पताल किला गुज्जर सिंह को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जवेद अकरम का आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह अस्पताल का दौरा किया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने शोधा पुलिस की यादगार और फूलों की चादर चढ़ाई और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम ने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 डॉक्टर इनाम वहीद, प्रिंसिपल किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी और एआईजी एडवन अमारा अतर, एसपी हेडक्वार्टर अब्दुल्ला लाख महकमा सेहत के अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तमाम खाली सीटों पर जो है लोग रखे जाएंगे, ये भी कहना था आईजी पंजाब का। पुलिस वेलफेयर अस्पताल में रोजाना प्रोफेसर और कंसल्टेंट्स जो है उनकी सहूलत मौजूद होगी। आंतों समेत तमाम सर्जरी मेजर ऑपरेशन भी इसी स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल में होंगे। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। तमाम अस्पताल मशीनरी और आलात को फौरी तौर पर फंक्शन किया जाएगा। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात दस्तयाब करने का भी ऐलान किया गया आईजी पंजाब की जानिब से। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। एलडी अफसरान का अनोखा कमाल, सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले टाउन प्लानिंग अफसरान ने दफ्तर आना छोड़ दिया। मॉर्निंग शिफ्ट में दफातर ना आने पर दफ्तरी अमूर मुतासिर होने लगे। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बताइएगा अफसरान की जानिब से क्या अनोखा कमाल सामने आया? हाँ बिल्कुल जी, ये एलडीए के अफसरान की जानिब से गैर संजीदा रवैया बरता गया है कि सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी करने वाले जो टाउन प्लानिंग के अफसरान हैं उन्होंने रूटीन में दफ्तर आना छोड़ दिया है। एलडीए 1 विंडो सेल पर सेकंड शिफ्ट में तैनात होने वाले जो अफसरान हैं वो इस वक्त मॉर्निंग शिफ्ट में दफातर नहीं आ रहे और मॉर्निंग शिफ्ट में दफातर ना आने की वजह से दफ्तरी अमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग ने बेजा एतराज लगाकर पेंडेंसी भी क्लियर करना शुरू कर दी है। मॉर्निंग शिफ्ट में दफातर ना आने से तालीम के काम मजीद इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। अब ये मामला हाईलाइट होने के बाद एलडीए की जानिब से इस मामले का नोटिस दिया गया है और एलडीए इंतजामिया ने मॉर्निंग शिफ्ट में दफातर ना आने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक नया ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया है। इस ऑफिस ऑर्डर में ये हदायत जारी की गई है कि सेकंड शिफ्ट में 1 विंडो और ई खिदमत पर काम करने वाले जो मॉर्निंग शिफ्ट के अफसरान हैं वो रूटीन में भी दफातर आकर अपनी मौजूद सर अंजाम देंगे। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां नोमान से ताजरों के वक्त की मुलाकात हुई है। ताजरों ने हाल रोड में बिजली के मसाइल से आगाह किया। हाफिज मियां नोमान ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं फहाद अमीन से। जी फहाद। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान से जो है वो ताजरों के वक्त में मुलाकात की है। ताजर रहनुमा बाबर महमूद की क़यादत में हाल रोड के ताजरों ने जो है वो लेस्को हेडक्वार्टर में चेयरमैन बीओडी से मुलाकात की है। चीफ इंजीनियर राजा महमूद रमजान भट्ट, स्टैंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सर्कल उमर बिलाल और ईस्टर्न सर्कल अनवर भट्टू भी जो है उस मौका पर मौजूद रहे। ताजरों ने हाल रोड में बिजली के मसाइल के हवाले से जो है वो आगाह किया। ताजरों का कहना था कि हाल रोड में बिजली की के लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर का जलना मामूल बनता जा रहा है। लटकती तारें ताजरों के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं।
اس حوالے سے چیئرمین POD کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ یہ تمام مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں گے. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے ایک ہفتے میں یہ تمام مسائل حل کرنے کی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی. ان کا کہنا تھا کہ ہار روڈ لاہور کا چہرہ ہے اور جلد ان تمام مسائل کو حل کیا جائے گا. جی بہت شکریہ فہد آپ کا. SP اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو کا چینی کونسل خانے اور رہائش گاہوں کا دورہ. کونسل خانے میں چینی عہدیداروں سے ملاقات کی. SP اقبال ٹاؤن نے چینی باشندوں کی رہائش گاہوں پر سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا. تفصیلات زین علی سے جانیں گے. زین علی بتائیے گا اس دورے کا حوالہ. جی بالکل. SP اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو نے چینی کونسل خانے اور رہائش گاہوں کا دورہ کیا ہے. اس دورے کے موقع پر SP اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو نے چینی کونسل خانے میں چینی عہدیداروں سے ملاقات کی اور SP اقبال ٹاؤن نے چینی باشندوں کی تمام رہائش گاہوں کو چیک کیا. چینی باشندوں کی رہائش گاہوں کونسل خانے کے تمام سیکیورٹی پوائنٹس کو بھی چیک کیا، جبکہ چینی کونسل خانے اور رہائش گاہوں کے اطراف سے CCTV سیف سٹی کیمرے کنٹرول روم کو بھی چیک کیا. سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات پولیس افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی بارے بریف کیا. SP اقبال ٹاؤن نے چینی باشندوں سے ملاقات کی اور سیکیورٹی بارے دریافت کیا. چینی کونسل خانے میں سمیت تمام چینی باشندوں کی رہائش گاہوں کو فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ مہیا کی جا رہی. اس حوالے سے SP اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو نے فوکل پرسن چائنیز انچارج کو مناسب ہدایات بھی جو ہے وہ جاری کی ہیں. ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ.